Hello student. Student, in this video lecture we will be talking about the Reynolds number. ठीक है? तो in this chapter earlier we have studied about the laminar flow. We have studied the steady flow. Student, the flow is found to be laminar when the flow speed is less. But when the flow speed tends to increase, then the flow does not remain laminar and it becomes the turbulent. ठीक है? तो हमने turbulent flow आगे स्टडी किया हुआ है. Now I give you some example of the turbulent flow. So suppose there is a fast moving stream, or you can say suppose there is a fast moving water. A water is flowing rapidly. In the path of that rapidly flowing water, if some obstacle is put, then eddies are produced. What is produced? The eddies are produced. ठीक है? जो water होगा उसमें eddies produce होगी. So this type of flow is known as the turbulent flow. In the turbulent flow, the velocity of the fluid rapidly changes with the position as well as with the time. ठीक है? So I give you some example of this type of turbulent flow, the flow in which the eddies are produced. क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं? eddies. ठीक है? मतलब कि ऐसे सर्कुलर शेप में जो फ्लो होता है उसको कहते हैं एडीज. ओके, सो आई गिव यू सम एग्जांपल. तो एक एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि व्हेन देयर इज अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम, इफ इट इज कोलाइडिंग विद सम ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, देन द एडीज आर प्रोड्यूस्ड. अब ये एडी क्या होता है वो बुक के अंदर बहुत डिटेल में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आई एम टेलिंग यू कि द फ्लो इन विच the water is moving in a circular path, or not exactly on the circular path, but it tends to move on the curve path. So that type of flow is known as the eddy flow. ठीक है? जैसे कि वाटर के अंदर व्हर्लपूल क्रिएट होता है ना? तो व्हर्लपूल के अंदर वाटर कैसे फ्लो होता है? इट मूव्स ऑन द सर्कुलर शेप. So that is known as the eddy. So that flow is also a kind of turbulent flow. ठीक है? Now I give you some example of the turbulent flow. Suppose there is a smoke which is rising from the burning stake of wood. Burning stake of wood. Stake of wood मतलब क्या कि जो लकड़े होते हैं, लकड़े की गठरी, बराबर, लकड़े के छोटे पीसेस हैं और उसको अगर हम जलाते हैं तो उसमें से जो स्मोक निकलता है, उसमें से जो धुआं निकलता है, which is rising up, तो वो जो धुआं होता है वो ऐसे गोल गोल होते हुए सर्कुलर फॉर्म क्रिएट करते हुए राइज होता है. सो एट दैट प्लेस द फ्लो इज फाउंड टू बी सर्कुलर. दैट इज कॉल्ड द एडीज. दैट इज द टाइप ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो. तो ये टर्बुलेंट फ्लो का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया. देन सपोज देयर इज अ मोटर बोट, और इफ देयर इज एन जेट प्लेन, इफ इट इज इन मोशन, इफ द मोटर बोट इज मूविंग रैपिडली इन द वाटर, देन द वाटर विच इट लीव्स बिहाइंड इट, उसके पीछे जो पानी वो छोड़ के जाती है मोटर बोट, तो वो पानी का जो फ्लो होता है, दैट फ्लो इज like a turbulent flow. And suppose there is a jet plane and jet plane is leaving the smoke behind it, तो वो जो स्मोक का जो फ्लो होता है, वो जो धुएं का जो फ्लो होता है, that flow is also known as the turbulent flow. तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया. ठीक है? there is one more example, the oceanic current in the sea. जो sea होता है, ओशन जो होता है, वो ओशन के अंदर जो वाटर का करंट होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, दैट फ्लो इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ टर्बुलेंट फ्लो. देन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. आप लोग अगर स्काई के अंदर स्टार्स को देखोगे,
the intensity of that star will not remain constant, but the intensity of the star is constantly varying. So we call it as a twinkling stars. है कि नहीं? तो that twinkling star is also because of what? It is because of the atmospheric turbulence. एटमॉस्फेयर के अंदर जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, वो टर्बुलेंस की वजह से जो स्टार्स होते हैं, दे सीम्स टू बी ट्विंकलिंग. ठीक है? ओके, सो these are the some example of the turbulent flow, turbulent motion I have given you. ठीक है? Now student, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनॉल्ड. रेनॉल्ड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. उनका पूरा नाम था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड. So this scientist Reynolds did the experiment and he observed that, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, that if the flow is low then it is more likely to be streamlined, but if the velocity of the flow increases then the flow does not remain streamlined longer. ठीक है? तो he also found that if there is a flow and that flow is having the high viscosity, वो जो flow है उसकी viscosity high है, means it is a viscous flow, and that flow is having the low velocity, then this type of flow is less likely to be turbulent. मैं आपको फिर से ये समझाता हूँ कि ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने क्या फाइंड किया. Scientist Osborne Reynolds found that if there is a viscous flow, कैसा flow है? Viscous flow. Viscous flow मतलब कि the flow whose coefficient of viscosity is high. बराबर? मतलब कि जैसे कोई ऑयल का फ्लो है तो आप उसको विस्कस फ्लो बोल सकते हो. So if there is a viscous flow which is flowing at a low speed, उसकी जो स्पीड है, सॉरी, स्पीड इज डिनोटेड बाय v. सो उसकी जो स्पीड है, इफ दैट स्पीड इज लो देन इट इज लेस लाइकली टू बी टर्बुलेंट. मतलब वो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रखता है. ठीक है? एंड इट इज मोर लाइकली टू बी laminar, it is more likely to be streamlined. Are you getting my point? Once again, I am repeating this point. Scientist Osborne Reynolds observed that if there is a viscous flow which is flowing at a low speed, then it is less likely to be turbulent. मतलब उसके turbulent होने की possibility बहुत कम होती है, and it is more likely to be laminar flow. ठीक है? Scientist Reynolds combined certain quantities and he gave a number. He gave a dimensionless number, and that number was giving the idea about the type of flow. तो वो जो नंबर था उस नंबर को कहते हैं रेनॉल्ड नंबर. ठीक है? तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला साइंटिस्ट रेनॉल्ड ने दिया था, that I am writing here. तो रेनॉल्ड नंबर is denoted by R. ठीक है? In some reference book I saw that कि उसमें रेनॉल्ड नंबर को NR से भी डिनोट किया था, but in our textbook that रेनॉल्ड नंबर is denoted by the symbol RE. So RE is equal to rho v d divided by p time. So this is a रेनॉल्ड नंबर. It is a dimensionless number है, उसके कोई भी dimensions नहीं है. Now student, you can try yourself. You put the dimension formula of all the quantities appearing in this formula. You put the dimension formula of rho, velocity, d मतलब कि diameter of the pipe through which the flow is flowing, and eta is the coefficient of viscosity. तो अगर आप ये सभी के dimension formulas रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो I है रेनॉल्ड नंबर है, that रेनॉल्ड नंबर is the dimensionless quantity. So the scientist Reynolds gave a number combining the density of the fluid
वेलोसिटी ऑफ द फ्लो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी मतलब कि डायमीटर ऑफ द फ्लो मतलब कि डायमीटर ऑफ द पाइप, दोनों का मतलब एक ही है, ईटा एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहां पर मैं इनकी मीनिंग्स लिख देता हूं। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V is velocity, capital D in somewhere small d is also written, that depends on you कि आपको क्या नोटेशन यूज करना है। तो ये जो d होता है उस d को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, और पाइप का जितना डायमीटर होगा उतना ही डायमीटर फ्लो का भी होगा, फ्लूइड का भी होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे सिंबल कर देता हूं, एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ viscosity. So this Re is the Reynolds number. Suppose there is a particular flow, we have to substitute the values corresponding to that flow, कि वो जो flow है उस flow की density क्या है, वो flow की speed क्या है, वो फ्लो का डायमीटर, फ्लो का डायमीटर मतलब कि मैंने आपसे कहा कि जो पाइप है, पाइप का जो डायमीटर होता है वही फ्लो का डायमीटर होता है, एंड ईटा मींस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, सो अगर हम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी आर गेटिंग सम नंबर। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर वी कैन डिटरमाइन वेदर द फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो और द टर्बुलेंट फ्लो। तो मैं आपको कुछ रेंज एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, if this Reynolds number is less than 1000, अगर उसकी वैल्यू 1000 से लेस है तो इसका मतलब कि जो फ्लो है वो कैसा है, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, द फ्लो इज लेमिनर, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑलवेज अ लेमिनर फ्लो। ठीक है, नंबर 2, इफ Re is greater than 2000 then the flow is टर्बुलेंट, फिर वो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड नंबर 3, इफ द रेनॉल्ड नंबर इज बिटवीन 1000 एंड 2000 मतलब 1000 से ग्रेटर है पर 2000 से लेस है, सो 1000 लेस देन Re लेस देन 2000, दैट मींस द फ्लो इज अनस्टेडी, फ्लो इज अनस्टेडी, दैट मींस the type of the flow keeps on changing, जो फ्लो का टाइप है वो कॉन्स्टेंटली बदलते रहेगा। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट द रेनॉल्ड नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट हियर दे हैव डिफाइंड वन मोर टर्म एंड दैट इज नोन एज द क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर को भी उन्होंने डिफाइन किया है और उसका जो नोटेशन यहाँ पर यूज किया है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नोटेशन नहीं यूज किया है, उन्होंने Re ही लिया हुआ है, बराबर। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर के लिए भी Re लिया है, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर के लिए भी Re लिया है, Re सफिक्स लाइक दिस Re। ओके, सो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, सो what is critical Reynolds number? See, the critical value of Re at which the turbulent is found to be same for geometrically same different flow. I write here critical value of Re at which टर्बुलेंट सेट, मतलब टर्बुलेंट जो फॉर्म होता है, टर्बुलेंट सेट इज फाउंड टू बी सेम फॉर ज्योमेट्रिकली सेम but different flow. So critical value of Reynolds number is the value,
critical Reynolds number is the Reynolds number value at which the turbulent is found to be same. मतलब जो फ्लो के अंदर जो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, that turbulence is found to be same for geometrically same but different flow. I explain the meaning of this. Student, suppose there are two pipes. This is the pipe 1 and there is another pipe. I call it as pipe 2. Both the pipes are having the same length and they are having the same diameter. दोनों पाइप की लेंथ भी सेम है और दोनों पाइप के जो डायमीटर है वो भी सेम है, बट थ्रू वन पाइप वाटर इज फ्लोइंग. एक में से वाटर फ्लो कर रहा है और जो दूसरी पाइप है उसमें से ऑयल फ्लो कर रहा है. सो हियर फॉर बोथ दी फ्लो द डायमेंशंस आर सेम. मतलब जो दोनों फ्लो है डायमेंशन मतलब कि यहाँ पर मेनली ट्यूब का डायमीटर, बराबर, क्योंकि जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है उसमें ट्यूब का डायमीटर आता है, ठीक है. और डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करो या कैपिटल डी से डिनोट करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो फॉर बोथ द फ्लो द डायमेंशन आर सेम, बट हियर द डेंसिटी एंड द विस्कोसिटी आर डिफरेंट. मतलब वाटर की डेंसिटी और ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है, दोनों की विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है, बट फॉर अ पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर, एक पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर के लिए, मतलब वो रेनॉल्ड नंबर दोनों के लिए सेम होता है. वाटर के लिए जो रेनॉल्ड नंबर है ऑयल के लिए भी वही रेनॉल्ड नंबर होगा. सो फॉर द सेम रेनॉल्ड नंबर द टर्बुलेंस फॉर्म is same in both the fluid. So that particular Reynolds number is known as the critical Reynolds number. समझ में आया? So critical Reynolds number is the Reynolds number at which the turbulent set is found to be same for geometrically similar but different kind of flow. तो ये critical Reynolds number की definition है. ठीक है स्टूडेंट? ओके. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है रेनॉल्ड नंबर का, ठीक है. तो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दैट फॉर्मूला. हाउ दैट फॉर्मूला हैज कम दैट इज नॉट एक्सप्लेन इन द बुक, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है. तो रेनॉल्ड नंबर RE इज इक्वल टू, देखो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है RE इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाय ईटा, ठीक है. यहां पर मैंने डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट किया है, ठीक है. नाउ हियर दिस इज रो वी स्क्वायर डी डिवाइड बाय ईटा इंटू वी. This is rho v square a eta a v divide by v. See what I have done. ये फॉर्मूला तो रेनॉल्ड ने दिया है R is equal to rho v d upon eta. So what I have done, I have multiplied and divide numerator by velocity of the flow. तो यहां पर v स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर v होगा, ठीक है. फिर फर्दर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर a आ गया. अच्छा, a मतलब क्या? a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि वो जो ट्यूब है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो मैंने ले लिया. और ये जो ट्यूब का डायमीटर है दैट इज इन द न्यूमरेटर. तो स्टूडेंट यू रिमेंबर वन थिंग, आगे जाके भी आपको बहुत काम में आएगा कि इफ एनी क्वांटिटी इज इन द न्यूमरेटर यू कैन राइट इट इन द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर. आप उसको डिनोमिनेटर के भी नीचे लिख सकते हो. तो ये डिनोमिनेटर है एनबी, तो मैंने उसके भी डिनोमिनेटर में उसको लिख दिया. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. तो ये एक रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है. अब इसको कैसे लिखा हुआ है? तो हियर
RE is equal to inertial force divided by viscous force. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर का एक न्यू फॉर्मूला है. रेनॉल्ड नंबर इज आल्सो इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स. तो ये जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है rho v स्क्वायर a, दैट इज द इनर्शियल फोर्स, और डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है eta a v by d, दैट इज द विस्कस फोर्स. तो वो कैसे है, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, दैट इज नॉट मेंशन इन द बुक. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इनर्शियल फोर्स. तो इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. बराबर. इट इज अ फोर्स. इनर्शियल फोर्स मतलब कि फोर्स ड्यू टू द मास. बराबर. तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन. अब ये स्टूडेंट मास क्या होता है? मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा कैपिटल V जैसा वॉल्यूम को V कैपिटल V से लिखता हूं. ठीक है, तो दिस इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. दिस A इज द एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. आया समझ में? ठीक है. अब ये है वॉल्यूम. अब स्टूडेंट वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, रो इंटू वी डिवाइडेड बाय टी. लिख सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू ए एल रो वी डिवाइड बाय टी. ऐसा हो गया. बट लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट स्पीड, वेलोसिटी. तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रो ए वी स्क्वायर. तो समझ में आ गया आपको कि ये कैसे आया है, रो ए वी स्क्वायर. सो दिस इज द इनर्शियल फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज द विस्कस फोर्स. सो विस्कस फोर्स. तो स्टूडेंट विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला हमने देखा है, बराबर, जो स्टोक्स लॉ के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो विस्कस फोर्स क्या था? इट वाज 6 पाई ईटा आर वी. कुछ इस टाइप से था. बराबर, 6 पाई ईटा आर वी. अब यहां पर हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आर से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सो दिस इज 6 पाई ईटा आर स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर. ठीक है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आर से मैंने मल्टीप्लाई किया. ठीक है. अब क्या करूंगा मैं? देखो 6 को मैं 6 रखता हूं, पाई और आर स्क्वायर को साथ में ले लो, पाई आर स्क्वायर हो गया. देयर इज ईटा, देयर इज वी डिवाइड बाय आर है, तो आर को ले लो, डायमीटर बाय 2. तो वो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो दिस विल बी 12 पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, सॉरी. तो दैट इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप. दिस इज ईटा, दिस इज V और डिवाइड बाय D. आई बात समझ में? तो आप यहां पर देखो, दिस इज ईटा ए बी डिवाइड बाय D. और स्टूडेंट ये जो 12 है वो 12 कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. सो इन दिस वे RE is rho v square A, which is the inertial force, divided by eta AB by D, that is known as the viscous force. समझ में आई आपको ये बात? ठीक है. तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. So student, I have explained you about the Reynolds number. ठीक है. Now I have to explain you one term that is known as the critical velocity. Critical velocity. Okay.
स्टूडेंट एक बात समझो, जैसा मैंने आपको समझाया कि इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000 देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, राइट? सो RE जितना लेस होगा, 1000 से लेस होगा, तो फिर फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। तो RE किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लो की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात समझो, यू कैनॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका डायमीटर आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप फ्लो की डेंसिटी की आप फ्लो की विस्कोसिटी की चेंज नहीं कर सकते हो। सो डेंसिटी, डायमीटर एंड ईटा, दिस आर द कांस्टेंट। सो व्हाट डज इट मीन? रेनॉल्ड नंबर depends only on the velocity of the fluid. Is that clear? As the velocity of the flow increases, जैसे जैसे फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो रेनॉल्ड नंबर भी इंक्रीज होता है। और रेनॉल्ड नंबर अगर इंक्रीज होगा, 1000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर फ्लो विल नॉट रिमेन स्ट्रीमलाइन, फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट। इज दैट क्लियर? सो हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी. So what is the critical velocity? The maximum velocity for which the flow remains streamline is called critical velocity. The maximum velocity of flow for which flow remains streamline is called, क्या कहते हैं उसे? is called critical velocity. is that clear? तो यहां पर वेलोसिटी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और उसको आप vc लिख दो। तो vc इज इक्वल टू RE इंटू ईटा डिवाइड बाय रो इंटू कैपिटल D लिखो या स्मॉल d लिखो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, द टर्बुलेंट फ्लो डिसिपेट्स द काइनेटिक एनर्जी। टर्बुलेंट फ्लो हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करता है, ठीक है? बट समटाइम्स द टर्बुलेंट फ्लो इज डिजायरेबल ऑल्सो। फॉर एन एग्जाम्पल, the frictional force also dissipates the energy, so that frictional force is also useful to us. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो टर्बुलेंट फ्लो है वो क्या डिसिपेट करता है? काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट करता है। सो व्हेनेवर द रेसिंग कार्स एंड द एयरक्राफ्ट आर डिजाइन्ड, they are designed in such a way that there will be a minimum turbulence, because as I told you, the turbulence dissipates the kinetic energy, right? Okay, but then I said that कि friction like force, बराबर, the turbulence like friction is sometimes desirable also. तो उसका भी एक एग्जांपल दिया है कि the turbulence promotes the mixing. जो टर्बुलेंस की फेनोमेना है वो मिक्सिंग को प्रमोट करती है। मिक्सिंग को प्रमोट करती है मतलब मिक्सिंग करने में हेल्प करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। आई गिव यू एन एग्जांपल कि इन किचन देयर इज अ मिक्सचर, ठीक है? दैट मिक्सचर इज यूज्ड टू मेक द मिल्क शेक। अब स्टूडेंट, जो मिल्क होता है वो पतला होता है, इट इज थिन, एंड जो मिल्क शेक होता है जिसको थिक शेक भी कहते हैं, वो कैसा होता है? थिक होता है, ठीक है? सो मिल्क में से ही मिल्क शेक बनता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दैट मिल्क इज थिन एंड द मिल्क शेक इज थिक. सो इन दैट मिक्सचर देयर आर ब्लेड्स, सो दोज ब्लेड्स क्रिएट्स द टर्बुलेंस इन द मिल्क. मिल्क के अंदर वो ब्लेड क्या क्रिएट करती है? टर्बुलेंस क्रिएट करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टर्बुलेंस there is increase in the mass, ठीक है? उसके अंदर
जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मास इंक्रीज हो जाता है, बराबर। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, राइट। सेम वे सपोज देयर आर एग्स, तो एग को अगर हम ब्रेक करके उसका अंदर का जो यॉक है उसको अगर हम मिक्सचर में डालते हैं एंड इफ देयर इज अ टर्बुलेंट सेट इन दैट मिक्सचर देन वी कैन गेट द यूनिफॉर्म टेक्सचर इन दैट, जो भी लिक्विड रहेगा उसके अंदर वी गेट अ यूनिफॉर्म टेक्सचर आल्सो। सो दैट इज आल्सो द गुड इफेक्ट, दैट इज आल्सो द बेनिफिट ऑफ द टर्बुलेंस, राइट। Now we are solving example 10.11. Understand? The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter. एक टैप है और टैप नल उसका जो डायमीटर है वो है 1.25 सेंटीमीटर। मैं उसे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, ओके। सो द रेट ऑफ फ्लो, अच्छा अब ये जो फ्लो रेट है उसको मैं डिनोट करता हूं Q से, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो Q1। तो रेट ऑफ फ्लो कितना है, इट इज 0.48 लीटर पर मिनट, ठीक है, 0.48 लीटर पर मिनट, राइट, ओके। अब स्टूडेंट यहां पर इन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने यस एमकेएस सिस्टम यूज की है, बीच में कहीं पर सीजीएस भी लिखा हुआ था, ठीक है। सो 1 लीटर, अब ये क्या होता है जरा समझो। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। आई थिंक ये मैंने समझाया था पहले कभी। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³। अब मीटर क्या होता है, मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10⁻³ और यहां पर हो जाएगा 10⁻⁶। सो दिस विल बी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया आपको ये, ठीक है, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, ईटा की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ पास्कल सेकंड, ईटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज इंक्रीज टू 3 लीटर पर मिनट, ओके। तो अब थोड़ी देर के बाद फ्लो रेट कितना हो गया, वो हो गया 3 लीटर पर मिनट हो गया। 1 लीटर मतलब 10⁻³ बराबर, तो 3 10⁻³ मीटर क्यूब और मिनट, ठीक है। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस इज 60 सेकंड। तो वही काम हम यहां पर भी करेंगे, 0.48 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइड बाय मिनट, मतलब कि 60 सेकंड कर सकते हैं हम ऐसा, बराबर। तो आप इसको ऐसे लिखो, बराबर। कैरेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ दी फ्लो रेट्स, ठीक है। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये पाइप है, पाइप का डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उस पाइप में से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है और वो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो है 10⁻³ पास्कल सेकंड। नाउ इनिशियली वो जो टैप है, जो नल है, उसमें से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, उस लिक्विड का जो रेट ऑफ फ्लो है दैट इज 0.48 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 0.48 लीटर पानी बाहर आ रहा है, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर। समझ में आया, ठीक है। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमकेएस सिस्टम ही हमको यहां पर यूज करनी है, ठीक है। तो ये आप
याद रखना। सो इनिशियली द रेट इज 0.48 लीटर पर मिनट एंड आफ्टर सम टाइम वो रेट इंक्रीज हो जाता है, वो नल में से जो पानी निकल रहा है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है और वो कितना हो जाता है, इट बिकम्स 3 लीटर पर मिनट। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू कैरेक्टराइज द फ्लो, मतलब पहले जब फ्लो इतना था 0.48 लीटर पर मिनट तो फ्लो का टाइम क्या था, और बाद में जब फ्लो 3 लीटर पर मिनट हो गया तब फ्लो का टाइम क्या है, तो दैट वी हैव टू डिटरमाइन। समझ में आया? ठीक है। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने जो आपको वेंचुरी मीटर का टॉपिक एक्सप्लेन किया था, वेंचुरी मीटर एक्सप्लेन किया था और उसके पहले मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ए और बी का प्रोडक्ट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम फ्लक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रेट ऑफ फ्लो। आप इस वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो Q क्या होता है, Q मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, बट स्टूडेंट मैं आर को d/2 लिखता हूं, तो दिस इज लाइक दिस, so this is equal to pi d square into v divided by 4। तो ये हमारा Q का फॉर्मूला आया, बराबर। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें v को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा, तो v is equal to 4Q upon pi d square। तो let us denote this as equation number 1। okay, now we have a formula for Reynolds number। तो रेनॉल्ड नंबर R इज इक्वल टू रो वी टी डिवाइड बाई ईटा, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला है। तो दिस इज रो डी अपॉन ईटा और v के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट करो, तो 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो एक v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू 4 रो Q डिवाइड बाई eta pi d। So this is the formula, this is the new formula for the Reynolds number, 4 rho q upon eta pi d। Let me check once ये राइट है कि नहीं, 4 rho q upon pi d eta। okay, that is correct, बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4, अब रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी नहीं दी है बट आई थिंक वाटर दिया है क्वेश्चन के अंदर, द फ्लो रेट ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी हमें पता है, बराबर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो दिस इज 10⁻³ डिवाइड बाई n मतलब 10⁻⁻ ईटा, ईटा मतलब 10⁻⁻3, पाई मतलब 3.14, बराबर। और ट्यूब का डायमीटर भी फिक्स है, दैट इज 1.25 10⁻²। तो इतना सब कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई क्यूब, ठीक है। सो वी जस्ट सॉल्व दिस कि इसका आंसर क्या आता है। देखो ये -3 और -2 होगा -5, दैट विल गो टू द न्यूमरेटर, तो वो हो जाएगा +5, तो अल्टीमेटली इट विल बी 10⁻8। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10⁻8, 4 डिवाइड बाय 3.14 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1.25, तो ये आया 1.01910 इंटू क्यू, ठीक है। टेक्स्ट को एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 1.019 लिखा है उन लोगों ने, इंटू 10⁻8 इंटू क्यू। यस, दे हैव डन लाइक दिस, ठीक है। तो इतना हमने किया। अब इस सब को मैं मिटा देता हूं। Q1 और Q2 की वैल्यू की मुझे जरूरत पड़ेगी। सो Q1 है 0.48, ये जो लिखा मैंने, और Q2 कितना है, Q2 है
3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट, जो कि था 3 10⁻³ डिवाइड बाय 60, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो नंबर 1, R1 रेनॉल्ड नंबर फॉर फर्स्ट फ्लो, रेनॉल्ड नंबर फॉर फर्स्ट फ्लो, फर्स्ट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो 101.01910⁸ इंटू Q1, 1.01910 इंटू 10⁸ इंटू Q1। तो Q1 कितना है स्टूडेंट, ये रहा 0.48 10⁻³ डिवाइड बाय 60। तो इसको हमें सॉल्व करना है। लेट्स सी व्हाट आंसर वी गेट। 1.01910 इंटू 0.48 ये किया, जो आया उसको डिवाइड करो 60 से, तो हमें मिला 0.008158 इंटू 10⁵ तो 1 2 3 4 5, तो दिस इज 815.28। तो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर। अब स्टूडेंट ये जो R1 है लेस देन 1000 है, तो हेंस फ्लो इज लेमिनर। फ्लो कैसा है, लेमिनर फ्लो है, बराबर। अब सेकंड वाले फ्लो के लिए फाइंड करते हैं। तो R2 इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर फॉर सेकंड फ्लो, तो उसके लिए 1.01910 10⁸ इंटू Q2, 1.01910 इंटू 10⁸ इंटू Q2। सेकंड फ्लो के लिए 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 60 आएगा, बराबर। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। 1.01910 इंटू 3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 60, तो आंसर आया 0.05095 इंटू 10⁻³ कितना 5, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे में लिख रहा हूं, जगह कम है इसके लिए, ठीक है। तो कितना होगा 1 2 3 4 5, सो 5095.5 इतना होगा, ठीक है। तो ये जो R2 है इट इज मोर देन 2000। लेट मी सी इन द बुक, के बुक में क्या आंसर है 5095, करेक्ट। सो यहां पर लिख रहा हूं कि R2 इज ग्रेटर देन 2000, हेंस फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, बराबर, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। Now we are solving exercise 10.28. In Millikan's oil drop experiment, what is the terminal speed of an uncharged drop of radius 2 into 10⁻⁵ meter? R रेडियस ऑफ ड्रॉप इतना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, उसकी टर्मिनल स्पीड फाइंड करनी है। डेंसिटी है 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टेक द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1.8 इंटू 10⁻⁵ Pascal second. How much is the viscous force on the drop at that speed? F. So दो चीजें हमको फाइंड करनी है, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी और दूसरा विस्कस फोर्स।
neglect buoyancy of drop due to air। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो एयर है उसकी डेंसिटी को इग्नोर करो। ठीक है, तो सिग्मा नहीं, हमने नोटेशन में मैंने रो जीरो दिया था, कहीं कहीं पर बुक में सिग्मा भी लिखा होता है। ठीक है, तो रो जीरो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर, तो उसको जीरो लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि निग्लेक्ट करो। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं एक बार। देखो, मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बराबर। तो उस एक्सपेरिमेंट में एक ऑयल का ड्रॉप है जिसका रेडियस है 2 × 10⁻⁵ मीटर। वो ड्रॉप एयर में फॉल कर रहा है। ठीक है, एयर में गिर रहा है। तो ड्रॉप ऑयल का है और मीडियम एयर का है। ठीक है, ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ड्रॉप की डेंसिटी दी है, ऑयल का ड्रॉप है, तो ऑयल की विस्कोसिटी दी है, बराबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला? V इज इक्वल टू, ये V मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, 2/9 r²g अपॉन ईटा रो माइनस रो जीरो। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हमने डेरिवेशन में किया। तो इसमें वैल्यूज रखो 2 × r कितना है? 2 × 10⁻⁵। अब g की वैल्यू मैं 9.8 ले लेता हूं। यहां पर रो माइनस रो जीरो है, तो रो है 1.2 10⁻3 डिवाइड बाय 9 और ईटा की वैल्यू 1.8 10⁻⁵। सो जस्ट वी ऑब्टेन, लेट अस सी व्हाट वी गेट। 2 × 2 4 होता है, 4 × 9.8 इंटू 1.2। तो ये जो आया उसे डिवाइड करो 9 से, जो आया उसे डिवाइड करो 1.8 से। सो वी गेट 2.9037 इंटू 10⁻, ये -5 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 3। तो लेट मी सी द आंसर कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, कौन सा है ये? 10.28। सो इसका आंसर है 5.8 इंटू 10⁻²। ओके, शायद कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक, यस स्टूडेंट, मिस्टेक डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और मैंने स्क्वायर नहीं लिया है। ठीक है, सो नीड टू डू द करेक्शन इन दिस। जस्ट ओके, फिर से कैलकुलेशन, चलो कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर है 4, 4 × 2 8 इंटू 9.8, जो आया डिवाइड बाय 9, जो आया डिवाइड बाय 1.8। सो वी गेट 4.83। ओके, 1.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना शायद। 5.8074 10⁻²। अब देखो -5 है तो -10 हो जाएगा, +3 +5 ऐसे। तो 5.8074 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो बुक में क्या आंसर है इसका आंसर है 28 का 5.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नाउ इट्स करेक्ट, 5.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इतना, ठीक है, ये एक आंसर आया। नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 × 3.14, ईटा की वैल्यू 1.8 10⁻⁵, रेडियस ऑफ ड्रॉप 2 × 10⁻⁵, और वेलोसिटी कितनी लेनी है? 5.8074 5.8074 × 10⁻²।
सेंटीमीटर वाली वैल्यू नहीं लेनी है. So let us do the calculation. 5.807 already there in my calculator, into 6 into 3.14 into 1.8 into 2. So this is 393.8815 into 10 raised to minus 12. Okay, let me check. कितना आंसर आता है? 3.9 into 10 raised to minus 10. Okay, correct. 3.93 10 raised to minus 10 Newton. So that is correct, student. Okay, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, but we got the answer.